Good morning, children. Right? We are meeting in second lecture of quick revision session. We'll take chapter 6, history. What is the title of the chapter? World after 1945. Okay? This is the title of the chapter, that is page number 39. We will work on page number 39. What is the basic content of this lecture? All topics connected to the lesson. All topics. But the main topics in this lesson is to study about World War, military groups, partition and unification of Germany, and disintegration of Soviet Union. Right? Other topics are there. Indo-US relation, India-China relation. And that is not that much important. Where this thing is connected. Now let us start with our lesson. Right? The terrific war, which we call World War II, was more, you can say, destructive than World War I. Why? Because in World War I, traditional weapons were used. Right? It brought destruction, huge amount of destruction. We cannot ignore. But comparative to World War I, World War II was more destructive. Right? Because in World War II, chemical weapons were used, biological weapons were used. Apart from it, the traditional weapons which were used in World War I were far more upgraded in World War II. Heavy machine guns and all these things came into existence. Because in that 20 years, that is called phase of World War I and II, right? Thousands of scientists, specifically in Europe, Germany, focused throughout production of arms and ammunitions. And finally, at the end of 45, as you have seen, we have seen a huge destruction. Two Japanese cities turning into ashes, that is called Nagasaki and Hiroshima. Right? So, this was the story. And finally, when this drastic and tragic war came to an end, officially data is not available because loss to property was immense. Whole of Europe was totally turned down into ashes. क्योंकि आप ही सोच लो बच्चों, जहां 6 साल तक वॉर चला हो, because World War I, II started in 39 and it ended in 45. 6 साल तक जहां पे वॉर चला हो, तहां वहां कोई भी चीज बची होगी क्या? Everything was on the way of destruction. तबाह हो गया था. शायद आप लोग कई बार वर्ल्ड वॉर II की मूवीज भी आप देखो, तबाही बचा है, तबाही आपको देखने मिलेगी. तो इसीलिए कुछ नहीं बचा था यूरोप में. जापान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था एंड में, क्योंकि उसके दो बड़े सिटी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों राख के ढेर हो गए. न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया गया था. दैट मीन्स at the end of World War II, even nuclear weapons were tested. Right? तबाही का मंजर था चारों ओर. इसी समय जब वॉर फुल फ्लेजेड चल रहा था, एक समय 1942 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, राइट, उसने वर्ल्ड पीस की लोग चाहना की थी. वो चाहते थे कि दुनिया में विश्व शांति. And in the middle of war, one side of war was going on, and on the other side, he prepared a charter to establish a universal body
after the war, which was called later on United Nations. मतलब एक बाजू विश्व शांति की बात हो रही थी और दूसरी बाजू वॉर चल रहा था, तो ये बात हुई. UN was established, UN Charter was made, and quickly after end of war in 1945, right? UN was established in 1945, that is called October, right? So all these things you have seen regarding World War II. But let us cover the major topics today here in this lecture, that is Cold War. Now what is meant by Cold War? Now see children, I will explain you in detail what is meant by Cold War. Because see, basically, when World War II started, Germany has a rivalry with France and England. That I told you, that you know. Right? That means world was bifurcated into two groups, Allied and Axis. Now, Allied group was headed by France and England. And Axis group was headed by Germany, Italy and Japan. Berlin, Tokyo and Rome axis. ऐसा वर्ड मैंने आपको बताया था, बराबर है. वॉर चलता रहा and finally axis were defeated. Now what happened? जर्मनी को तो पहले से इंग्लैंड और फ्रांस पे गुस्सा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर I के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, rank injustice was done to Germany by England and France. Literally, Germany was looted by these two nations. तो अंदर से तो जर्मनी आग बबूला हो ही गया था और उसको मौका मिल गया. उसको मौका कौन सा मिला कि भाई इंग्लैंड और फ्रांस को हम खत्म कर दें. वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ और हिटलर ने फोकस इंग्लैंड और फ्रांस पे ही किया था. तबाह हो गया. फ्रांस को तो उसने 1940 में ही खत्म कर दिया था. इंग्लैंड थोड़ा बच गया था because England resisted, but still it could not fight against mighty Germany. 1942 की बात आई. एक गलती जो हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री में ऐसा लिखा है कि अगर हिटलर ने रशिया पे हमला करके गलती नहीं की होती तो ये आज चैप्टर नहीं होता. इक्वेशन कुछ अलग ही होते. Hitler committed a mistake by attacking Russia in 1942 because Russia and Germany made a friendship treaty before World War II. कि आप अपने घर रहो, मैं मेरे घर रहूँ, हमको कुछ वॉर से लेना देना नहीं है. Hitler was in now egoistic mood. उसको तो ऐसा लगता था मैं सारी दुनिया जीत सकता हूँ, पूरा यूरोप मेरा है. And breaking that friendship treaty, he invaded Russia. Actually, he underestimated Russia, and Russians put a dodge attack. बहुत होशियारी से जवाब दिया. जर्मन लोग के लिए समझ के बाहर था कि रशिया इतना रिटेलिएट होगा, रशियंस ऐसे जवाब दे सकते हैं. क्या समझ में? तो बात बनी. दिक्कत ये हुई, जर्मन आर्मी भी थक चुकी थी because they were fighting war since last 3 to 4 years. And second thing, जर्मनी ने जब हमला किया, विंटर सेट इन रशिया, तो नेचर की मदद है. रशिया की विंटर को सबको मालूम है कैसे विंटर है, फ्रीजिंग. German army could not fight 2 battles at one time. One battle was with Russian army and second was with nature. So Russian army had to retreat. Sorry, German army had to retreat. उसके पीछे रशियन आए. जर्मन आर्मी भाग चले रशियन बॉर्डर से. जहां भी पैसेज मिला वो भाग चले. रशियंस ने भी जमकर हमला किया. पहली दफा हिटलर को हार नजर आने लगा, राइट? बिकॉज जर्मन आर्मी वाज रिट्रीटिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्रंट अगेंस्ट रशिया.
उसी वक्त जापान ने भी दूसरी गलती की, जो गलती जर्मनी ने की थी। वॉर चला गया, जर्मनी रशिया का वॉर अभी हो गया था, क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन ये तो सब हार के पड़े थे, छोटे मोटे यूरोप के देश। इंग्लैंड थोड़ा टिका हुआ था, जर्मनी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, वो एक धड़ाके में उसको कॉन्कर कर लेता। रशिया, हिटलर वाज ओवर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग इंग्लैंड। टाइम चेंज। जो गलती हिटलर ने रशिया पे की हमला करके, वैसी ही गलती जापान ने अमेरिका पे की, राइट? जो पैसिफिक ओशन में पॉल आइलैंड नामक, पॉल हार्बर नामक जो आइलैंड का ग्रुप है, American Navy was stationed there to look after Asia. Right? Japan made an unprecedented preparation to attack Pearl Harbor. And almost with full-fledged, with full concentration, Japanese Air Force and Navy attacked Pearl Harbor. This attack was bolt out of blue. It was an unexpected attack for Americans. Americans सपने भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जापान मेनलैंड से पर्ल हार्बर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है, और डायरेक्टली आप सोचो तो अमेरिका और जापान की कोई दुश्मनी भी नहीं थी दूर दूर तक। तो अमेरिका के लिए एक सदमा था कि जापान ऐसे क्यों कर सकता है। एंड इन सिंगल रेड, possibly you have seen that movie Pearl Harbor. In that single raid, American Navy was totally destroyed. कई सारी warships टूट के डूब गई, frigates डूब गई, more than 4,000 civilians, soldiers were stationed there. Children were killed, more than 4,000. Right? So it was really an unexpected incident for America. And after the incident of Pearl Harbor, American president declared, "We are at war." तब जाके अमेरिका वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ, और उसका वॉर जापान के अगेंस्ट था। अच्छा, जापान का ग्रुप जर्मनी के साथ था, मतलब एक्सिस, तो ऑब्वियसली अमेरिका एलाइड को ज्वाइन करेगा। रशिया के साथ अमेरिका भी ज्वाइन हुआ, ताकि एलाइड ग्रुप जो खत्म होने को आया था उसकी ताकत 4 गुनी बढ़ गई, क्योंकि 2 नए कंट्रीज, बड़े कंट्रीज अभी एलाइड में एंटर हुए। एक रशिया एंटर हुआ नॉर्थ में से, यूरोप में से, क्योंकि रशिया जर्मनी के साथ लड़ रहा था, अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था, जर्मनी और जापान एक ही ग्रुप में थे, ताकि अमेरिका और रशिया ने अपना ग्रुप बना लिया। दे जॉइन फ्रॉम एलाइड। सो नाउ सडनली एलाइड ग्रुप केम टू लाइफ, क्योंकि अब तक मर चुका था एलाइड ग्रुप। एलाइड ग्रुप के जो हेड थे इंग्लैंड और फ्रांस, वो तो कब के तबाह हो चुके थे, बराबर है। तो इसीलिए एलाइड को नया मोमेंटम मिला। एंड फाइनली यूरोप में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। In history it is said Long Day Battle, right? Long Day Battle, 6th June. The combined forces of England, France, America and Russia attacked Germany from all the sides. It is said in history, you try to search up, you write in Google Long Day Battle, ऐसा लिखना, पूरा लिखा आएगा, राइट? More than 8 lakh soldiers, 3,600 plus fighter planes उस जमाने के, more than 3,600 fighter planes, more than 1,000 plus small and big ships. That means army, navy, air force, तीनों विंग ने जर्मन पे डट के हमला किया, चारों देश के। नाउ जर्मनी कुड नॉट एस्केप। वैसे भी जर्मनी
People were tired, right? So from all sides, Germany was covered by these four united groups. And it is believed, after some resistance, Germany surrendered. And before surrendering, it is believed that Hitler committed suicide along with other officers. But still, his death is a mystery. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की भी डेथ एक मिस्ट्री है, वैसे हिस्ट्री में हिटलर की डेथ भी एक मिस्ट्री है। अंडरस्टूड? क्योंकि उस वक्त टनल्स बहुत बना रखे हिटलर ने, एक जगह से दूसरे गांव दूसरे सिटी में निकल जाने की भी टनल्स की व्यवस्था थी, बहुत टाइम था। तो ऐसा है, आज भी नेशनल ज्योग्राफी शायद आप देखते होंगे, तो उसमें दिखाते हैं टनल्स ऑफ जर्मनी, राइट? अंडरग्राउंड टनल्स जो वॉर के टाइम बनी थी, अब तो बुड़ दी गई है, लेकिन कई लोग एक्सप्लोर करके ये टनल्स ढूंढ निकालते हैं। कई लंबी टनल्स 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबी होती है, एक साइड से दूसरी साइड जाएगा। तो वैसी ही एक टनल से ऐसा माना जाता है हिटलर भाग गया था, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं यूनाइटेड फोर्सेस के हाथ में पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या आश्रय होगा। सो जर्मनी सरेंडर, जर्मनी लॉस्ट द बैटल। इटली ने अप्रैल में सरेंडर किया था, जून में जर्मनी ने सरेंडर किया, और फिर पूरी ताकत लगा के ये चारों ने, बिकॉज अमेरिका वांटेड टू ब्रिंग वॉर टू एन एंड, किसी भी हालत में 6 साल से युद्ध चल रहा है, बस खत्म करो। And with this intention, America asked Japan to surrender, but Japan did not. So America took a drastic step by dropping 2 nuclear bombs consecutively, 6th August, 9th August, Hiroshima, Nagasaki, and Japan unconditionally surrendered. World War II came to an end. Now there was establishment of new order. इसमें ऐसा हुआ कि जो पहले सुपर पावर्स थे, इंग्लैंड और फ्रांस, वो दोनों हार चुके थे, बराबर? जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों हार चुके थे। नाउ रशिया एंड अमेरिका इमर्ज्ड एज 2 न्यू सुपर पावर्स। सो दैट मीन्स the responsibility of shouldering the new world was lying on Russia and America. Now we are coming to Cold War. What is meant by Cold War? War of ego, war without weapons. अच्छा, कोल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों फ्रेंड्स थे, मित्र थे, दोनों ने मिलके जर्मनी को डिफीट किया। तो ऐसी को क्या बात हुई, दोनों आमने सामने आ गए, जिसको हिस्ट्री में आज कोल्ड वॉर बोलते हैं। दैट वाज डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। क्या डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेसी इज ऑपोजिट टू ईच अदर, ईस्ट वेस्ट है। तो इसीलिए जब न्यू वर्ल्ड की अरेंजमेंट होने लगी तो दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी साइड सेफ करने लगे, स्ट्रॉन्ग करने लगे, और इसकी वजह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी 1945 के बाद। क्योंकि जर्मनी जब डिफीट हुआ, then Berlin, capital city of German, that's what Berlin was handed over to 4 commanders to look after Germany, जहाँ से उसका प्रशासन होता था। रशियन मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री, फ्रेंच and British. Now out of these 4, Russia was a communist nation, while America, England and France was democratic nations. तो दो अलग हुए, तो जो भी कोई
डिसीजन लिया जाता था एक की तरफ से, दूसरा उसको अपोज करते थे। मान लो कोई रशियन ने कोई डिसीजन लेना चाहा तो डेमोक्रेटिक मतलब फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका उसको अपोज करेंगे। अच्छा, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड कुछ करना चाहते हैं तो रशियन उसको अपोज करेंगे। ये 4 साल तक चला। 4 साल तक बर्लिन में एक्सपेरिमेंट चला एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि लेट अस गेट स्प्लिट अवे। आप अपने हिस्से का जर्मनी ले लो, मैं अपना हिस्सा ले लूं। दैट वाज पार्टीशन। क्योंकि 4 साल तक रशियन, फ्रेंच, ब्रिटिश and American army commanders governed Germany, but there was clashes every time, difference of ideology थी, दोस्त एक दूसरे पे भरोसा किसी को नहीं था। तो ऐसे वातावरण में कैसे काम कर सकते हैं, अलग होने का निर्णय हो रहे। And then Berlin Wall was created, right in the middle of Berlin. ईस्ट बाजू जो वॉल था वो भाग रशिया में चला गया, इट वॉज कॉल्ड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट बाजू जो फ्रांस, इंग्लैंड साइड का जो जर्मनी था, वॉल की वेस्टर्न साइड, उधर वेस्ट जर्मनी बना। नाउ वेस्ट जर्मनी हैड अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट वाज इन द हैंड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ईस्ट जर्मनी वाज इन द हैंड ऑफ कम्युनिस्ट, सो देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज सेट अप, एंड 42 kilometers long wall was constructed in Berlin, which was called Berlin Wall, which was a symbol of Cold War. 1949 में ये दीवार बनाई गई थी। Thousands of people, जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसी तरह जर्मनी का बंटवारा हुआ था। Thousands of people tried to cross from east to west because in west there was free atmosphere, and in east there was military government. Dictatorial government. Communist government means dictatorial government. There was no freedom of thought, speech, right, adult franchise, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजदूरी थी, काम था, एक्सप्लॉयटेशन था। और जब रशिया ने जर्मनी को पूरी तरह निचोड़ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आप हिस्ट्री पढ़ो, सब डेटा आपको मिलेंगे, कुछ एनसाइक्लोपीडिया आप ढूंढो गूगल में, इतना निचोड़ा था जर्मनी को कि उतना तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने भी नहीं लूटा होगा। इतना रशिया ने जर्मनी को निचोड़ दिया था, ईस्ट जर्मनी को। While in West Germany there was freedom, right? There was democracy, freedom of speech, thought. मतलब वेस्ट जर्मनी खूब आगे बढ़ता गया, ईस्ट जर्मनी पीछे पड़ता गया। So thousands of people in search of better future, in search of better life, freedom, trying to cross this wall. हर बार वो बदनसीब रशियन सोल्जर्स की गोलियों के शिकार बन जाते थे। मैं ऐसे नहीं कहता, शायद 1000 लोग में से 5 लोग ऐसे होते होंगे जो लकी होते तो इसमें से वेस्ट में चले जाते, लेकिन 995 को तो मार दिया गया। Thousands of people were killed, thousands of Germans were shot dead. Why? उसका गुनाह क्या था? वो वॉल क्रॉस करना चाहते थे, आजादी में जाना चाहते थे। 89-90 तक चला, 40 years, 4 decades, right? East Germany was ruled by communist, and West Germany was ruled by democratic. Now it was an open atmosphere of mistrust, क्योंकि रशिया जो कम्युनिस्ट था उसकी जो स्पाइंग एजेंसी थी वो थी केजीबी, क्योंकि हर एक देश को, हर एक कंट्री को अपनी स्पाइंग एजेंसी तो रखनी चाहिए, जैसे हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे रशिया की केजीबी है और अमेरिका की एफबीआई है, बराबर, लोकल सीआईए है, राइट, और एफबीआई, 2 इंस्टीट्यूट है। एफबीआई, सीआईए, केजीबी सबके जासूस चारों ओर फैले थे, एक दूसरे की जासूसी करते थे। कई वर्ल्ड वॉर की मूवीज भी है कोल्ड वॉर पे। उसके बाद शायद आपने पुरानी जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी होगी, तो इसमें यही टॉपिक आता है, जेम्स बॉन्ड इज फाइटिंग फ्रॉम डेमोक्रेटिक नेशंस विथ कम्युनिस्ट नेशंस, बराबर, अ मैन विद गोल्डन गन, टुमारो नेवर डाइज,
कई ऐसा वर्ल्ड का बंटवारा हो गया, और रशिया और अमेरिका दोनों अपने हिसाब से जो नए नए कंट्रीज जो आज़ाद हो चुके थे उसको ग्रैब करने लगे अपनी तरफ, लालच देके, बढ़ावा देके। तो दुनिया में दो ग्रुप वापस बन गए, एंड वंस अगेन वर्ल्ड वॉर सिटिंग इन द डेंजर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होता तो दुनिया तबाह हो जाती, क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन 1945 में किया हिरोशिमा और नागासाकी में। 1949 में रशिया ने 7 टाइम्स न्यूक्लियर टेस्टिंग किया, और अमेरिका से कई गुना ज्यादा ताकत वाले बॉम्ब्स, इनडायरेक्टली चैलेंजिंग अमेरिका कि अगर आप सुपर पावर हो, न्यूक्लियर सुपर पावर हो, तो हम भी न्यूक्लियर पावर है। मतलब इट वाज अ पावर बैलेंस बिटवीन टू नेशंस, एंड बोथ ऑफ देम possessed न्यूक्लियर वेपन्स। और जो देश उसकी पनाह में आते थे उसको शुरुआत में ऐसी मदद करते थे। सो कई देशों के पास अमेरिका और रशिया की टेक्नोलॉजी, चाइना पहुंची, फ्रांस पहुंची, इंग्लैंड पहुंची, कई देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। वंस अगेन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्रस्ट वाज क्रिएटेड, राइट? एक दूसरे को कोई विश्वास ही नहीं था, एंड दैट इज व्हाई मिलिट्री ग्रुप्स वर एस्टैब्लिश्ड। पहला मिलिट्री ग्रुप बना नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप में मेन 2 कंट्रीज थे, इंग्लैंड और अमेरिका। कि रशिया अगर यूरोप में ज्यादा कम्युनिज्म फैलाए, दूसरे कंट्रीज को गुलाम करे या हमारे कुछ नुकसान करे, तो उसका जवाब दे सकते हैं। लेटर ऑन फ्रांस आल्सो जॉइन दिस ग्रुप। मतलब उसके थोड़े समय बाद जो भी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के डेमोक्रेटिक नेशंस थे, सब नाटो में चले गए। बराबर? नाटो का हेड था अमेरिका, कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए। नाटो आज भी है नाटो। दूसरा ग्रुप बना सीटो, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उस वक्त ऑयल निकल गया था, एंड रशिया एंड अमेरिका बोथ वर ऑयल इकोनॉमी। दोनों को मिडिल ईस्ट में अपना स्वार्थ था, इसलिए मिडिल ईस्ट में उन लोगों ने पंचर करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मिडिल ईस्ट फ्रॉम रशियंस कम्युनिज्म, once again new group was established under the leadership of England. It was called CENTO, Central Asian Treaty Organization. फिर बड़ी नई कंट्रीज की, एशियन कंट्रीज की जो नई नई आज़ाद हुए थे, उस पर वॉच रखने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड ने तीसरा एक ग्रुप बनाया जाता है, कॉल्ड सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट? मतलब डेमोक्रेसी वालों ने 3 ग्रुप बनाए कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए। एक था नाटो, सीटो और सेंटो। ये तीनों के जवाब में दुनिया भर के जो कम्युनिस्ट नेशंस थे उन्होंने एक दल बनाया गया, दैट वाज कॉल्ड वॉर्सो पैक्ट, बिकॉज दिस ग्रुप वाज मेड साइन इन पोलैंड, कैपिटल वॉर्सो। पोलैंड का जो कैपिटल वॉर्सो सिटी है, उधर सब मिले और सबने साइन किया कि अगर कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन हमें कुछ कहे तो हम यूनाइटेडली उसको जवाब देंगे। तो वंस अगेन वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, वन बाय डेमोक्रेटिक एंड वन बाय कम्युनिस्ट। डेमोक्रेटिक पावर ब्लॉक का नाम था नाटो, सीटो, सेंटो। कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक का नाम था वॉर्सो पैक्ट। कई जगह पे पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिका, रशिया ने तबाही मचा रखी थी। इंडिया जैसे कई देश आजाद हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि व्हाई टू बिकम अ सैक्रिफिशियल गोल इन द इंटरनेशनल टर्म ऑफ वॉर, बिकॉज ये दो लड़ते हैं, अगर दोनों में से एक की दोस्ती की तो दूसरे की दुश्मनी बोनस में मिलेगी, तो दोनों से आप सेफ डिस्टेंस रखो, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो इंडिया की लीडरशिप में जो नए नए आजाद देश हुए थे, उन लोगों ने तीसरा दल बनाया, तीसरा ग्रुप बनाया, दैट वाज कॉल्ड नॉन अलाइंड ग्रुप्स। बराबर? रशिया से या अमेरिका से इन लोगों की दोस्ती भी नहीं थी और दुश्मनी भी नहीं थी, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। एंड आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते 35 नेशंस
वो चाहे जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की हो या चाहे इंग्लैंड की हो, सब लूट चुके थे। अब ज्यादा लूटना बाकी नहीं था और इसकी लीडरशिप इंडिया ने ली थी। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया a third group was made which kept safe distance from these both superpowers, that is called America and Russia, which was called non-aligned groups. और ये non-aligned groups ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। जहां जहां भी सिविल वॉर जैसी परिस्थिति थी, जहां ये दो सुपर पावर पहुंच जाते थे, कोई ना कोई तमाशा करते थे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड किया, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को डिवाइड किया, अफ्रीका में तबाही मचा रखी, एशिया में जैसे हमने नॉन अलाइंड नेशन बनाया, अमेरिका ने पाकिस्तान को उकसाया क्योंकि वो हमको तंग करे, और पाकिस्तान तब से जाके अमेरिका का पिट्ठू बन के बैठा है। बहुत अमेरिका ने इंडिया विरुद्ध, ये तो अभी अमेरिका सीधा हुआ है, ये तो अभी हम बोल सकते हैं कि अमेरिका भारत को मदद कर रहा है, वरना अमेरिका ने पाकिस्तान को भरपूर मदद की थी, भरपूर मदद की थी। उसका एजेंडा क्या था? इंडिया को आप अनस्टेबल करो, इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की एक एजेंसी भी बनाई थी जिसको आज हम ISI बोलते हैं। आपने भी नाम सुना होगा, हम पाकिस्तान के कई मूवीज देखते हैं ना, वो आपने पूरी देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 देखा होगा। तो ये जो सब डिजाइन करते हैं जहाँ आतंकवादी गुट रहते हैं, चाहे वो जश्न मोहम्मद हो, बराबर, वो दूसरा कुछ ऐसा ग्रुप का नाम भी हम भूल जाते हैं क्योंकि पूरा देश आतंकवाद से भरा हुआ है, गली गली में आतंकवादी घूमते हैं, राइट। तो उन सबको ट्रेनिंग कौन आपका देता है? पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है, बना देता है, उसको बोलते हैं ISI, इंटर सर्विस एजेंसी। ISI का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह भारत में अशांति पैदा करो। The trained militants which are coming in Kashmir, they are all trained by ISI। और जो भी भारत के गुनहगार होते हैं, जो भी भारत में गुनाह करते हैं बड़े बड़े, वो सब पाकिस्तान भाग जाते हैं और सबको पाकिस्तान बना देता है। अब सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट देखो, दाऊद इब्राहिम, आज भी पाकिस्तान में बैठ के छुप के बैठा है। अरे हमारे IB रॉ को उसका एड्रेस भी मालूम है, कई बार हमने UN में भी प्रपोजल लिखी है, लेकिन हर बार पाकिस्तान मना कर देता है कि भाई ऐसा कोई बंदा है ही नहीं हमारे देश में, ये सब गलत है। वो उसको बैकअप करता है अमेरिका, पहले अमेरिका बैकअप करता था और चाइना बैकअप करता है, क्योंकि जैसे आप देखो अभी लोकल पॉलिटिक्स में, इंटरनेट जियो पॉलिटिक्स में, तो जैसे अब चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है भारत के खिलाफ, ठीक उसी तरह शायद उससे भी ज्यादा अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान को मदद कर रहा था। जब हमारी और बांग्लादेश की लड़ाई हुई, बांग्लादेश के लिए भारत पाकिस्तान की वॉर ऑफ 1971, उस वक्त भी अमेरिका ने UN में बोला था, सिक्योरिटी काउंसिल में, कि भाई पाकिस्तान इज अवर एलाय एंड इट इज यू कैन से इट इज अ रूल, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ अमेरिका टू सपोर्ट इट्स एलाय। हम पाकिस्तान के दोस्त थे, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और अगर हमारा दोस्त किसी मुश्किल में है तो हम उसको जवाब देंगे, बराबर है। UN में ऐसा अमेरिका ने बोला था कि हम इंडिया को जवाब देंगे, इंडिया के खिलाफ हम लड़ेंगे। तब जाके रशिया ने वीटो पावर यूज किया था हमारे लिए पहली बार, कि अगर अमेरिका वॉर ज्वाइन करता है तो भले हमारे इंडिया से कुछ नहीं है, रशिया ने बोला था ऐसा कि भाई हमारे इंडिया से कुछ नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता है वॉर ऑफ 1971 में, तो हम अनकंडीशनली इंडिया को मदद करेंगे। तो ये बात हुई, ये वॉर भारत पाकिस्तान का छोड़ के अमेरिका और रशिया का हो जाता, बराबर है। तो ऐसा मंजर बना था। आहिस्ता आहिस्ता समय चलता गया, फिर जाके ट्विन टावर की घटना हुई, अमेरिका के 2 टावर गिर गए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें पाकिस्तान हाथ बाहर आया, फिर जाके पाकिस्तान अमेरिका की नजर में से गिर गया।
तब से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध टूट फूटने लगे। बाद में आगे जाके पाकिस्तान ने लादेन को भी पनाह दी थी। पूरी दुनिया में 10 साल तक वो चिल्लाता रहा कि लादेन नामक व्यक्ति कोई हमारे देश में है ही नहीं। बराबर है। और अमेरिका भी ढूंढती रही लादेन को। और आपको मालूम है लादेन को अमेरिकन फोर्सेस ने पाकिस्तान की जमीन पे ही सुला दिया, उसको मार दिया। एक इंग्लिश मूवी है, शायद आपने देखा होगा, डार्क 030। आप लोग घर पे ही हो, देख लेना, बहुत बढ़िया मूवी है। पेरेंट्स को बोला, सबने बोला है समझ में। हाउ अमेरिकन सील कमांडोज, जैसे हमारे कमांडोज होते हैं भारत में, जैसे अमेरिका के सील कमांडोज होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए ट्रेन होते हैं। एक 10 साल तक एक जर्नलिस्ट ने, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लादेन का पीछा किया था। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और 10 साल के बाद लादेन का ठिकाना हाथ लगा है, समझ में। And then Laden was attacked on his own house, in his own house, and he was killed. उसकी बॉडी को भी ले गए थे अमेरिकन्स, राइट। बहुत बढ़िया मूवी, एक्शन मूवी है, डार्क 030 मूवी का नाम है, डार्क 030। बहुत बढ़िया मूवी है, देख लेना। पाकिस्तान झूठ फैलाता रहा था कि भाई लादेन है ही नहीं। अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, यूएन को भी दिखा दिया, ये देखो लादेन उसकी धरती पे हमने मारा। और वहां वो भी कहा, इस्लामाबाद के नजदीक। लादेन का जो घर था, उसके घर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूरी आर्मी का बेस है, पाकिस्तानी आर्मी का बेस। तो भी अफगानिस्तान में घुस के लादेन को मारा था। वो आपने सर्जिकल स्ट्राइक वाली मूवी देखी है ना, उरी का, ठीक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त हुई थी, राइट। पाकिस्तान लेकर बेनकाब हो गया और आज उसकी हालत क्या है सबको मालूम है। तो ये थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात। पार्टीशन हुआ जर्मनी का, फिर आया रशियन डिसइंटीग्रेशन की बारी। रशिया जो सुपर पावर था वो अपने बोझ से ही टूट पड़ा, बिकॉज आफ्टर 1980s रशियन इकोनॉमी मेट अ फेलियर। जो कम्युनिस्ट नेता थे सब अय्याश किस्म के थे, बहुत पैसा खर्च, भ्रष्टाचार, करप्शन बेफाम हो रहा था। Then liberal-minded leader Mikhail Gorbachev came to power, but it was too late. And in 1980, Russia, which was made up of 14 states, started to disintegrate. अलग होने लगे, बराबर, आहिस्ता आहिस्ता सब अलग हो गए। When these 14-15 states disintegrated, there was not a single drop of bloodshed. That is a remarkable event in history of 20th century. एक खून का बूंद नहीं बहा था, शांति से अलग हो गए थे। हमारे भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ, दोनों और कितनी मारामारी कापाकापी हुई थी, कई लोग मरे थे। आज भी वो घाव जिंदा है, कई लोग आज भी आग उसे करते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। आज सारे कंट्रीज जो रशिया में से अलग हुए थे, यूक्रेन, अजरबैजान, कजाकिस्तान, राइट, मोल्दोवा, कीव, राइट, ये सब उसके कंट्रीज के नाम हैं, छोटे छोटे। वो सब आज आगे बढ़ चुके हैं। रशिया अपने आप आगे बढ़ चुका है। आज भी रशिया एक सुपर पावर माना जाता है जो अमेरिका को जवाब दे सकता है। The time went on. So this was all the story of lesson number 6. Right? कोल्ड वॉर क्या है, क्यों मिलिट्री ग्रुप बनाने पड़े, क्यों पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन जर्मनी का हुआ, क्यों रशिया अपने हिसाब से टूटा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन वाज इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। यूएसएसआर के साथ हमारे बढ़िया रिलेशन है। हमारे अमेरिका के साथ पहले अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अब अच्छे हो गए हैं। चाइना के साथ अच्छे संबंध हमारे नहीं है,
पाकिस्तान के साथ तो कभी हमारी बनी ही नहीं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है ना? श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल, ये सब छोटे छोटे देश उसको चला लेते हैं। तो ये पूरा स्टोरी था हमारे 6th लेसन का, दैट वाज वर्ल्ड आफ्टर 1942 45, राइट? आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। मैंने 1-2 मूवीज के नाम भी आपको दिए हैं, बराबर? देख लेना टाइम मिले, बहुत मजा आएगा। हाँ? तो चिल्ड्रन, I think you have understood this whole lesson. In next lecture, we will start with new lesson. Okay, children? Now it is your time to take your homework. Right? Come on, note down your homework. Homework. Short note on military groups after World War II. Right? Military groups established after World War II. Second, short note on disintegration of Soviet Union. Disintegration of Soviet Union. ये 2 शॉर्ट नोट आपको लिखनी है, राइट? नाउ वी विल मीट इन 3rd lecture with new chapter. Okay, children? Till then, see you. Goodbye. Take care.